working for them. Yes, Beenalji, yes, we are very, very glad to have many of you who are coming for all our knowledge calls. Since some of you are new, I'm going to take this quick moment to quickly introduce about Yana's Healing Studio and Sri Karya Siddhi and the great vision that we have for Sri Karya Siddhi and Yana's Healing Studio. I am Vasudha. I work with Team Siddhi Shah. I've been working with Siddhi ji for last maybe more than 1.5 years. And it's really been a blessing to work with her, to learn from her, and to be here and share many of my knowledge with you. Most of you have also attended some of my workshops, and it's been really good to just come here and share knowledge with you. So let's understand that what is Yana's Healing Studio and what is our vision and what do we want to do, what do we want to create for all of you. याना सेलिंग स्टूडियो एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म है जो सिद्धि जी लीड करती है. शी इज अ विजनरी लीडर बिहाइंड याना सेलिंग स्टूडियो. शी इज अ टेडेक्स स्पीकर, शी इज अ स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेशन कोच. हम सबने देखा है उनके ट्रांसमिशन, उनकी जो अट्यूनमेंट्स है, दे आर सो सो पावरफुल. She is a divination expert. She has mastered more than 100 plus modalities. And over the last few years, सिद्धि जी ने 11,000 से भी अधिक लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है थ्रू हर रीडिंग, थ्रू हर कोचिंग, थ्रू मेंटोरिंग एंड हर इंट्यूटिव गाइडेंस. यानास हीलिंग स्टूडियो ये विजन से बना था कि वी वांट टू बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन. आपको सीखना है, रीडिंग लेनी है, हीलिंग करवानी है, ये सारी ही सर्विसेज हमारे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. वॉट एवर यू नीड फॉर योर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन. This platform offers healing sessions. It offers spiritual coaching, mentoring, intuitive readings, energy activation, whoever is seeking clarity, balance, and growth. And one of Siddhi's brainchild has also been Sri Karya Siddhi, जहाँ पे हम ऑथेंटिक स्पिरिचुअल और एनर्जी एनहांसिंग प्रोडक्ट्स आपके लिए उपलब्ध कराते हैं. Sacred tools for personal growth, arrangements for various पूजास, हवन, जो हेल्प करती है आपको आपकी लाइफ में हार्मनी लाने के लिए, अपने आप को एलिवेट करने के लिए, अपनी एनर्जी को एलिवेट करने के लिए. विद अ पावरफुल विजन, हमारा ये ध्येय है, हमारा ये लक्ष्य है कि वी मस्ट इम्पैक्ट मोर देन 1 लाख प्लस पीपल. अभी तक हम 11,000 से अधिक लोगों तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं. एंड वी वांट टू रीच मोर एंड मोर पीपल एंड 1 लाख प्लस इंडिविजुअल्स एंड हेल्प देम to focus on healing, awakening, and conscious living. Now let me just introduce quickly about our today's mentor. So Neha ji has already taken more than 3 workshops with us, and all of them have been really good. She's taught Nitika Clonic, she's taught lemon remedies, and she has also taught us magical salt making, how you can make salts at home and you can start your own spiritual salt business. And it's been an amazing journey. So today Neha ji is coming up with this workshop which is called as Brahmastra remedy. She's going to tell us, guide us about remedies which are tried, tested, which are from our ganthas. They are curated. These are tried and tested and very powerful. They are not just remedies, but they are the energy activation that we can do for helping us to come out of the blockages. Nehaji has been into this field for more than 2 years and she's worked with more than 500 plus people. And she has done a lot of tarot reading. She's a tarot reader, numerologist, spellcaster, and an energy magical expert. So over to you, Nehaji. Let's welcome her. Let's send her heart. Let's send her claps and let's welcome her for this Thank you so amazing, much for amazing. this beautiful. Thank you so much. Thank you so much for all the love being showered here. I think you're facing some bandwidth issues. Thank you, Sudha ma'am, for the beautiful. Nehaji, I think you're facing some bandwidth issues. Thank you. I hope
Yes, We yes, are not is able to to hear name. you, Neha. Audible. We are Am not I able to hear you properly. audible or no? No, you are not audible. Can I The can voice I is join breaking. can I join in from my phone, Yes, ma'am? you can join back. Can I Yes, yes, join in? you can join back. Thank you, Ekta ji. Means a lot. So let's wait till Neha ji rejoins and tak, let's do some chit chat. So in case if you have done any of our previous workshop, आपको कुछ भी शेयर करना है, कोई पहले की रेमेडी कॉल की आपने ट्राई करी है, आपको रिजल्ट आया है, so let's take some sharing. Whoever has tried any of our previous remedies from the workshop, अगर आपको कोई workshop का feedback देना है, so please feel free to go ahead and share it with us. जब तक नेहा जी rejoin कर रही है, let's take some of the sharing. Ma'am, Ho'oponopono has helped me a lot, ma'am. So whenever I'm driving or anything, also automatically my mind starts reciting that, and it calms myself very nicely, ma'am. I feel at ease and things like that. And Amazing, amazing. and what this has enabled is like last 2 weeks or so, whatever I'm dreaming, it's totally different in the occult science stuff, and I'm able to journal it also, ma'am. Wow, that is really good. Yes, Ekta ji. Good evening, Vasudha ma'am. How are you? Good evening. I'm good. Thank you so much. Good Good to to see see you you. after so long. Same I have here. done so many workshops with you. Like one was Hanumanji remedies wala thing. Then I have done that Varahi Devi wala thing. Yes, That also I did. Then Navratras remedies also. And I think these all remedies somewhere actually works. One or the other way, they really work because we are in Hindu culture. We actually believe in these. When you have belief, obviously automatically things work for you. So these all remedies are effective. Then runes divination is also a kind of magic because yes, it is something which actually world doesn't know. But when you start trying them at one go, obviously there is a kind of question mark in the mind whether it will work. But then when you actually believe in that and you do it, it really works and really yes. worked for me. So it was really Amazing. a great experience. And at times when you tell other people, okay, I can, give some signs to you, you do it. So they are actually surprised. What is runes? What is this? So that is something, really exciting. जब किसी को बताओ and they don't know actually Yes. about it. रून्स ज्यादा फेमस नहीं है ना इंडिया में, वेस्टर्न में ज्यादा फेमस है रून्स. Even my bhabhi is a good astrologer. I mean, at good level, and she is a Vastu expert also. So Hmm. when I told her once, so she was totally clueless about that. That what is it? Yes. Even, in Western countries, they also use runes for choosing the alphabet for names. जैसे हम यहाँ पे Hmm. न्यूमरोलॉजी से करते हैं, वहाँ पे वेस्टर्न मेथड्स में दे यूज रून्स, क्योंकि सारी रून्स एक अल्फाबेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं. Even switch words, ma'am. Switch यस, words also, people don't know. People know mantras, how to chant. But if यस. we talk about Italian switch words or the Blue Aries team switch words, I've हम्म. been into this thing since so long, since 2014. Somebody told me about this and I tried 2, 3 remedies and it worked. Then I searched for this in the Facebook and then I got to know about it. So Yes, these even I remedies learned also, switchboard from Blue Iris only. yeah, that is the best actually. That team is the best one. I've done Yes. course from them. So Yeah, they even really me. work. These switch words really work. Yes. So Neha ji is here. So over to you, Neha ji. I was just chit-chatting until you were not there. Yeah, thank you so much for the support. There is some tech glitch happening today since evening. I'm so sorry for this, but I hope I am now audible and I am visible to you all. Yes. Great, great. सो आज हम यहाँ पर आए हैं ब्रह्मास्त्र की रेमेडीज की नॉलेज कॉल के लिए. ब्रह्मास्त्र रेमेडीज से कोई मुझे बता सकता है कि क्या होगा ये नॉलेज कॉल? व्हाट वुड बी देयर हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म टुडे? एनी आइडिया?
जी एकता जी प्लीज बताइए। ब्रह्मास्त्र एज इट इज सेज, जिसका कोई तोड़ ना हो, तो वो ऐसा उपाय है जिसका कोई और तोड़ नहीं है। Absolutely yes, absolutely yes, fantabulous, thank you so much ekta ji. Anybody else? जी मीनाक्षी जी बिल्कुल पावरफुल रेमेडी, एब्सोल्युटली राइट। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू गिव इट अ ट्राई? सुनील जी आपका हैंड रेज है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? ओके ओके, एनीबडी एल्स हु वांट्स टू गिव इट अ ट्राई? इट्स अल्टीमेटम। ओके ओके शैलजा जी, ओके। Absolutely yes, Nancy ji, you're right. When everything fails, but this works. Yes. जिसका वार खाली नहीं जाता है, और ये ब्रह्मा जी की ही दी हुई रेमेडीज हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज हैं। मतलब मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आप लोग इसको अगर सीख लेते हो, अपनी प्रॉब्लम्स की जड़ समझ लेते हो, तो हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारी लाइफ में 4 ही एस्पेक्ट्स हैं: रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर, फाइनेंसेस। अगर ये चारों चीजें ठीक चल रही हैं, तो हम लोग कहीं जाते हैं इधर उधर भटकते हैं? सोच के देखो एक सेकेंड। अगर हमारे रिलेशनशिप्स सब सही चल रहे हो, करियर में सब कुछ ठीक चल रहा हो, पैसा आ रहा है, फाइनेंसेस, एवरीथिंग, हेल्थ एब्सोल्युटली इज परफेक्ट, जिंदगी कैसी होगी? एक बारी सोच के देखिए। और अगर इन 4 एस्पेक्ट्स में अगर हम कहीं पे भी फंस जाएं, तो क्या होता है? क्या होता है? पंडितों के पास जाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड, पंडित। हेल्थ खराब हो जाती है तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा इलाज डॉक्टर के पास ही है। और जब हमारे को रिलेशनशिप में इशू आता है, रिलेशनशिप में इशू का मतलब कोई भी इशू, ठीक है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बननी, डोमेस्टिक वायलेंस, लड़ाई झगड़ा, डिवोर्स, सेपरेशन, राइट, यही सब होता है रिलेशनशिप में। एंड व्हेन इट कम्स टू योर मनी, मनी आज की डेट में हैज द एंटायर पावर। मनी अगर है तो रिश्ते भी बहुत सुंदर हैं, मानते हैं सब लोग। और अगर पैसे नहीं हैं तो रिश्ते भी डगमगा जाते हैं, राइट। तो जब सब कुछ अच्छा है, खुशियां ही खुशियां हैं हमारे पास, तो हम इधर उधर भटकते नहीं हैं। तो इस कोर्स को लाने का एक रीजन सबसे बड़ा यही है, क्योंकि वी ऑल नो दैट वी आर फेसिंग सम चैलेंजेस, राइट। किसी ना किसी को कोई ना कोई इशू तो होगा ही लाइफ में। तो क्यों नहीं इस नॉलेज को हम ही ग्रहण कर लें, जो ब्रह्मा जी ने हमें गिफ्ट में दी है। सिर्फ सीखना ही तो है। सीख लेंगे तो फायदे में रहेंगे, क्योंकि इतनी सारी रेमेडीज हैं, इतनी सारी रेमेडीज हैं कि आपको जड़ पता चल जाए तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में खुद ही। फिर हमें कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेमेडीज है तो बहुत, अगर तरीके से की जाए तो बहुत 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 अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इनके। We only have to keep 2 things in mind, which is your faith and your good intention. That's it. So, are we all ready today with a notebook and a pen handy? Because I would like to share a couple of remedies with you. आप लोग उनको करो, पहले देखो कि क्या ये इशू है मेरी लाइफ में। अगर रेजोनेट करते हो तो ये रेमेडीज करिए, और प्लीज हमें प्लेटफॉर्म पे बताइएगा कि क्या इससे रिजल्ट मिला आपको। So are we all set? Please give me a thumbs up, show me a heart, show me your smiles. Are we all ready? Thank you so much, Ekta ji. Thank you so much, Meenakshi ji, Sujata ji. Thank you so much. ठीक है, पहली रेमेडी
किससे स्टार्ट करूं, आप लोगों की बता दो। अबंडेंस, इससे स्टार्ट करें? ठीक है मीनाक्षी जी। देखिए, बरकत के लिए, अबंडेंस के लिए, लाइफ में ग्रोथ के लिए, हाँ हेल्थ भी मैं कवर करूंगी, डेफिनेटली कवर करूंगी। गुड टू सी यू नीता जी, गुड टू सी यू, गुड टू सी यू पेनी जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू। सो Yeah. आई अगेन रिपीट, जो रेमेडी हमको अभी लिखनी है फर्स्ट, दैट इज अबंडेंस, बरकत के लिए, हमारे घर में बरकत रहे बहुत, मनी के लिए, एंड लाइफ में ग्रोथ के लिए। तो जो भी स्टक है इन तीनों चारों एस्पेक्ट्स में, वो ये रेमेडी करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट राइटिंग गाइज। ये रेमेडी जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ, ये हम शुक्ल पक्ष में करेंगे। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष पता है सबको, हर 15 डेज बाद आता है। तो आप गूगल पे जाएंगे एंड शुक्ल पक्ष चेक करेंगे कि ये कब से है। आइडली मेरी नॉलेज के हिसाब से आई थिंक इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 18th of April, if I'm not wrong. But please check, okay? Please check. आपने क्या करना है, जो ये रेमेडी है, ये आप संडे को नहीं करोगे। You will not do this on Sunday. Other than that, 43 days continuously except Sundays. ठीक है, हमने पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना है मॉर्निंग में, एंड कोशिश करिएगा कि इसको हम 9 AM से पहले करेंगे। और जब आप पीपल के पेड़ पे जल चढ़ा रहे होगे, तो हमें सबको पता है कि पीपल के पेड़ पे विष्णु जी का वास होता है, राइट? और विष्णु जी किनके हस्बैंड हैं? लक्ष्मी जी के। तो जब भी हम पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाते हैं या पीपल के पेड़ से कोई भी रिलेटेड रेमेडी करते हैं, तो हम विष्णु जी को भी याद करते हैं एंड साथ में लक्ष्मी जी को भी याद करते हैं, क्योंकि जहां हस्बैंड होंगे वहां वाइफ ऑटोमेटिकली होंगी। ठीक है, एंड लक्ष्मी जी हमें पता है किसकी माँ है? धन, मनी। ठीक है, तो आपने सुबह 9 AM से पहले पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना है। विष्णु जी का आप मंत्र जाप कर सकते हो, 108 बारी कोशिश करिएगा कि करें। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, सबको पता है, इसका जाप करेंगे एंड लक्ष्मी जी का भी ध्यान करेंगे। ठीक है, इसी दिन अगर आपने सपोज मंडे से ये स्टार्ट किया है, तो सुबह आप पहले ये करोगे एंड शाम को 7 बजे से पहले आटे का दीपक जलाकर आओगे उसी पेड़ पर। इंटेंशन डालना बहुत जरूरी है, फेथ रखना बहुत जरूरी है। अब इंटेंशन कोई भी हो सकता है, जो लोग ग्रोथ के लिए स्टक हैं, ग्रोथ में स्टक हैं, जॉब में स्टक हैं, वो जॉब से रिलेटेड मांगेंगे। जिनको अबंडेंस चाहिए इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, वो वाला इंटेंशन सेट करेंगे। ठीक है, तो हम सुबह क्या कर रहे हैं? आवाहन कर रहे हैं, और शाम को जो हम दीपक जला रहे हैं उससे क्या कर रहे हैं? सम्मान दे रहे हैं, रिस्पेक्ट। तो ये दोनों चीजें आप 43 डेज तक कंटिन्यूसली करिएगा। ठीक है, इसके साथ सैटरडेज को अगर आप हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हो तो वो भी करिएगा। मंदिर में जाकर करें तो नथिंग लाइक इट, ये सिर्फ सैटरडे को ही होगा। वहां पे आप हनुमान जी को और राम जी को भोग चढ़ाओगे, बूंदी का भी चढ़ा सकते हैं हम। ठीक है, एंड प्रसाद चढ़ाने के बाद अपने घर में थोड़ा सा प्रसाद लेकर भी आओगे और सबको खिलाओगे। हनुमान जी वाली रेमेडी सिर्फ सैटरडे को की जाएगी। पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना और रात को शाम को दिया जलाना, वो संडेज को नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ू? शैलजा जी, there are 2 remedies which have to be done. No problem, I'll repeat.
देयर वर 2 रेमेडीज, मैंने 2 रेमेडीज अभी बताई हैं, अबंडेंस को लेकर, बरकत, पैसे को लेकर, और लाइफ में ग्रोथ के लिए। ठीक है, इस केस में आपने क्या करना है, आपने संडेज को छोड़ के मंडे टू सैटरडे पीपल के पेड़ पे जाकर सुबह 9 बजे से पहले जल चढ़ाना है, विष्णु जी का मंत्र जाप करना है, कोशिश करिए 1 माला करें, लक्ष्मी जी को याद करेंगे, एंड शाम को 7 बजे से पहले हम वहां आटे का दीपक जलाकर आएंगे, और आटे में आप सरसों का तेल डालो। 43 डेज तक रेगुलरली ये करिएगा एक्सेप्ट संडेज। ठीक है, एंड इसी के साथ आप सैटरडे के सैटरडे हनुमान जी, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। इसी के साथ हम सैटरडे को हनुमान वंडी वर्तम में और छेद पागला सैटरडे को हम हनुमान अष्टक पढ़ेंगे, उनको बूंदी चढ़ाएंगे, और राम जी को भी चढ़ा सकते हैं, एंड वही प्रसाद हम थोड़ा सा अपने घर पे आकर अपने सब घर के मेंबर्स को खिलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, हो गया। अब यहाँ पर एनीबडी हु इज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, जी जी शैलजा जी, स्वीट वाले बूंदी, मीठे बूंदी, जो हनुमान जी का प्रसाद होता है ना, वो वाला। ठीक है, अब यहाँ पर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है? एनीबडी हु इज अ न्यूमरोलॉजिस्ट? एकता जी, आप हैं? ओके, गुड गुड। Actually, I am a mobile numerologist, and with mobile numerology, I have done the basic course of numerology also. ओके ओके ओके, सो जो रेमेडी मैं अब बताने जा रही हूँ वो एक्चुअली मूड स्विंग्स को लेकर है, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स, और ये ज्यादा पाया जाता है पीपल हु आर बोर्न ऑन 2, 11, 20। ठीक है, उनको हमेशा एक पुश की जरूरत होती है, एंड देखा जाता है कि ग्रिड में अगर 2 बहुत बारी आ जाए तो सुसाइडल टेंडेंसी भी बनती हैं। जस्ट अ सेकेंड एकता जी, वसुधा मैम, आर यू हियर? वसुधा मैम, हाँ हेलो नेहा भाई बोलो। कोई खड़ी हो गया हां वंडी होनो हाँ वसुधा नेहा मैम, बोलो। हाँ बोलो बोलो। कैन यू प्लीज म्यूट एवरीबॉडी? Okay, I'll mute everyone. I will remove the unmute request. Okay, they can जी raise जी, hand and you can unmute them. ठीक है, Yeah, done. ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, अब जिनको भी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, जिनको न्यूमरोलॉजी नहीं आती है, ठीक है, आप न्यूमरोलॉजी के पार्ट को छोड़ दो। अब अगर ये प्रॉब्लम, हम ज्यादा सोच रहे हैं, जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं, हमें नींद ही नहीं आती है, रात रात को करवटें ही बदलते रह जाते हैं, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग, राइट? आप छोटी छोटी चीजों पे रोने लग जाते हो, कभी कभी तो ऐसा होगा कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि रीजन क्या है, बट रोना आ रहा है, तो दैट मीन्स यू आर वेरी वेरी इमोशनल। ठीक है, कुछ केसेस ये देखे जाते हैं, कुछ केसेस ये होते हैं कि लाइफ से तो हम वैसे भी निराश हैं, चीजें हमारी काम आ नहीं रही हैं, तो हम मर जाते हैं। ये भी बहुत केसेस में देखा जाता है। उस केस में अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम किसी को है, जरूरत से ज्यादा सोचना, नींद ना आना, सुसाइडल टेंडेंसीज, उस केस में आप क्या करोगे? अमावस्या के टाइम पर, ठीक है, अमावस्या के टाइम पर काले तिल ले लो। अब कितने लेने हैं? आप एक छोटा डिस्पोजेबल बोल होता है, जो भी साइज आपके हाथ में आ जाए, जो भी साइज आपके हाथ में आ जाए, या छोटा ग्लास ले लो जिसमें चाय आती है, या छोटा डिस्पोजेबल कटोरी ले लो, उसमें आप काले तिल भर लो जितने भी आ रहे हैं।
और आपने 1.25 लीटर कच्चा दूध लेना है। दैट मीन्स अ पैकेट, मोर देन अ पैकेट। ठीक है, 1.25 लीटर आपने दूध ले लेना है। आपने डिस्पोजेबल कटोरी में काले तिल भरे और आपने 1.25 लीटर कच्चा दूध ले लिया। ठीक है, आपने क्या करना है, शिव जी के मंदिर पे जाकर पहले उस दूध का छींटा देना है। फिर जो कटोरी में आप तिल लेकर गए हो उसको शिव जी के पास रख देना है। अब यहाँ पे इंटेंशन सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये रेमेडी क्यों कर रहे हैं, वी ऑल नो। इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, चीजें समझ नहीं आती हैं, रात को नींद नहीं आती है, ये सारे इश्यूज अगर आप फेस कर रहे हो, नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा है, कोई काम में हाथ डालने से पहले ही नेगेटिव हो जाते हो, तो अगर ये सारे इश्यूज आ रहे हैं, शिवलिंग पे जाएंगे। ऑब्वियसली 1.25 लीटर दूध है तो आप उसको किसी भगोने में ही लेकर जाओगे, किसी यूटेंसिल में ही लेकर जाओगे। तो मंदिर में जाने के बाद आपने वहां पे उसी दूध में से छींटा मारना है। जो डिस्पोजेबल कटोरी में काले तिल रखे हुए हैं उसको शिवलिंग के पास या शिव जी के पास रख देना है। एंड वो सारा दूध जो बचा हुआ है छींटे मारने के बाद, वो आप शिवलिंग पे डाल दोगे और वहां जाकर इंटेंशन सेट करोगे। और हमने भूल चूक में जो गलतियां की हुई हैं उनकी हम माफी मांगेंगे। और यहाँ पे शिव जी के मंदिर में गए हैं तो अगर हम एक माला 108 बारी बीड्स की अगर कर लें ओम नमः शिवाय के, तो बहुत ही अच्छा होगा। एंड प्लीज गो एंड सरेंडर, सरेंडर कर दीजिए। अब किसी के माइंड में ये तो नहीं आ रहा है कि शिव जी ही क्यों, किसी के माइंड में ये तो नहीं आ रहा है कि शिव जी ही क्यों, क्योंकि हमें पता है ना शिव जी ने धारण किया हुआ है मून। एंड बहुत बहुत इनका रोल प्ले है हमारे इमोशंस को लेकर। तो अगर हम सरेंडर कर देंगे, अच्छा इंटेंशन सेट करेंगे, तो शिव जी अपने बच्चों की मदद करेंगे ही करेंगे। अब किसी का कोई ऐसा इशू है कि अचानक बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था और बंद हो जाता है, ऐसा इशू है किसी के पास कि कोई अच्छा बिजनेस चल रहा है, हस्बैंड का, फैमिली में किसी का, ब्रदर का, अच्छा सब कुछ चल रहा था और एकदम से बंद हो जाए या रुक जाए, जैसी ग्रोथ होनी चाहिए वैसी ना हो। इज एनीबडी फेसिंग दैट काइंड ऑफ एन इशू? नई रेमेडी दूं फिर इसकी, दे दूं? Payal ji, I will, if you have a question, I'll get back to you. Nishikant ji, I will get back to you. Let me just complete this remedy, ठीक है? ठीक है? I will answer everybody's questions. माधुरी जी ये बिजनेस के लिए ही है वैसे। हाँ, तो पूनम जी ये रेमेडी है आपके लिए, रुका नहीं है बट ग्रोथ नहीं हो रही है, सो एवरीथिंग इज स्टैग्नेंट, राइट? तो उसमें हमें ग्रोथ चाहिए। उसके लिए आप लिखिए, बार्ली होता है, बार्ली, जौ, जौ होता है, जौ, बार्ली, BARLEY। हमने एक डिस्पोजेबल कटोरी में बार्ली डालनी है, जौ जिसको कहते हैं, ठीक है? और जब आप सो रहे हो का मतलब जिसका बिजनेस नहीं चल रहा है, योर हस्बैंड, योर ब्रदर, योर सन, एनीबडी, या आप खुद, आपने क्या करना है, आपने जो ये कटोरी ली है जिसमें आपने जौ जौ डाली है, बार्ली डाली है, इसको अपने बेड के नीचे रखना है। अब आजकल के बेड में बेड बॉक्सेस आते हैं, तो हम कहाँ रखें? यहाँ पर आपने सैक्रिफाइस करना है और सोफे पे सोना है, या कोई ऐसा बेड देखना है, जैसा हम उसको कहते हैं ना, हिंदी में क्या कहते थे पुराने टाइम पे, चारपाई आती थी ना, चारपाई, मंजी जिसको कहते थे, मंजी। द पॉइंट हियर इज कि हमने जो ये जॉ रखना है ना, बेड के नीचे रखना है, मतलब अपने सर के नीचे रखना है, वो जगह खाली होनी चाहिए। यू कांट कीप दिस बोल इनसाइड योर बेड बॉक्स। एम आई क्लियर यहाँ तक?
किसी को कोई डाउट तो नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोफे के नीचे सोते हो तो सोफे के नीचे वो जगह जो नीचे जहाँ पे उनके पैर हैं सोफे के, वो जगह खाली होती है यूजुअली। आजकल तो बहुत अलग अलग स्टाइल के सोफे आ गए हैं, वो भी कॉम्पैक्टेड ही होते हैं। हमें कॉम्पैक्टेड वाली बंद वाली जगह पे नहीं सोना है। आप मंजी को अज्यूम करिए, चारपाई जिसको कहते थे, चारपाई, कि जिसके सिर्फ पैर दिखते थे और सारा नीचे से खुला होता था। रॉट आयरन के बेड्स, थोड़ा सा पिक्चर में लेकर आओ, आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आपका जहाँ हेड है सोते समय, वो जौ की कटोरी आपने अपने हेड के नीचे रखनी है। और ये कब करना है? हमने सैटरडे को करना है। और संडे के दिन जब आप सुबह उठोगे, इसको आप पीपल के पेड़ पे, बस बॉक्स में नहीं रखना है जूली जी। हमने इसको खुली जगह पे रखना है, बेड के नीचे, सर के नीचे। और बेड बेड बॉक्स है तो वहां नहीं रखेंगे। इट शुड बी ओपन। और संडे को इसको उठा के आप सिर्फ पीपल के पेड़ पे इसको रख कर आओगे। वहां पे अगेन प्रेयर करोगे विष्णु जी एंड लक्ष्मी जी को, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करोगे, उनसे माफी मांगोगे, उनको बोलोगे कि मुझे रास्ता दिखाइए, एंड घर वापस आ जाओगे। एंड ये रेमेडी आप 5 सैटरडेज रेगुलरली करोगे विदाउट अ ब्रेक। विदाउट अ ब्रेक। ओके, now I'll ask your questions. You can hand raise, and Vasudha ma'am will keep unmuting. And if you have the option of unmute, you can do it yourself. Otherwise, मेरे को इशारा करके दे देना, because I think I don't have the access of unmuting you. Okay? So any questions still here, please let me know. जी एकता जी, please बताइए, can you unmute yourself? No? Okay, since I am also using my phone, I'm not tech savvy, so I will not be able. Let me just see. Let me just see. Vasudha ma'am? Vasudha ma'am? I have Good allowed evening, them ma'am. to unmute, and I have made you co-host also. But then I am doing it from phone. I really Now am you not can tech try. savvy. Yes, you can do it from the phone. Am I audible, ma'am? जी, you are audible, निशिकांत जी, please बताइए। हाँ जी। मैम, अभी ये जो संडे का जो पीपल का है, तो मॉर्निंग में मतलब फ्रेश होने के बाद जाना है पीपल के पेड़ पे, या है ना? Of course, ओके। yes, of नहीं, course. बिकॉज सम रेमेडीज आर लाइक कि मतलब उठते ही जाओ। नहीं 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 नहीं, आप प्लीज नहा कर जाइएगा। ओके, तब तक ठीक है, वो वैसे ही रखना है ना, सिर्फ फ्रेश होने के बाद जाओ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और हेल्थ का जरूर बताना मैम। और जो आप जो अटक गया था ना सिचुएशन लाइफ में, तो स्टक हो गया, तो वो हाँ उसके तो लिए मैं हैंड रेस कर रहा था। हाँ तो ये अबंडेंस वाला रिचुअल करना चाहिए आपको, पीपल के पेड़ वाला, लाइफ में ग्रोथ के लिए ही है ये। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू सो मच। Can I speak now? Hello. यस प्लीज एकता जी, प्लीज एक मैम, सेकंड निधि जी वेट करिए। एकता जी प्लीज बताइए। मैम ये जो स्टॉक ग्रोथ का आपने जॉ वाला बताया, अब आपने बोला कि नीचे स्पेस होना चाहिए, राइट? बट यस, आजकल ज्यादातर जिनके भी आप घर पे जाओ, लाइक जितना मैं जानती हूँ, सबके बेड के नीचे स्पेस नहीं होता। सो लाइक सम रेमेडीज विच यूजुअली आई ऑल्सो गिव टू माई क्लाइंट्स, उसमें हम लोग उस चीज को पैकेट में डाल के फ्लैट करके पिलो के नीचे भी रख देते हैं। तो इज इट पॉसिबल कि हम इसको भी ऐसे कर सकें? नहीं, ओके। इसको नहीं, अच्छा। इसको नहीं करिएगा ऐसे। ओके। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू एकता जी। जी निधि जी। मैम, ये जो भी आपने रेमेडी बताई है कि संडे को हमने पीपल पे जाके जौ रख के आना है, एक्चुअली हमारे यहाँ तो मना करते हैं, संडे को पीपल टच भी नहीं करते। तभी तो मैंने कहा कि सिर्फ हमें रख कर आना है। यू डोंट हैव टू टच एनीथिंग, यू डोंट हैव टू वाटर ऑल्सो। कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ रख कर आना है। ओके मैम। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू।
एनी अदर क्वेश्चन जी? बिनल जी बताइए प्लीज। I have बिनल जी one आपका क्वेश्चन question. है? I have one question. ये जो 40 days, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ग्रोथ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, is for how many days? 43 days regularly. Okay, thank you. Thank you. Let's start from Monday. If you feel that everything is stuck, तो शुक्ल पक्ष से स्टार्ट कर लो आप इसे। Okay. तो शुक्ल 43 पक्ष days में तो कृष्ण पक्ष भी आ जाएगा, तो कंटिन्यू। बट वो हमने स्टार्ट तो कर दिया ना। ओके, हमने स्टार्ट तो कर दिया ना, वो हम कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैम। ओके, 43 days any day I can start. See, 18th ideally शुक्ल पक्ष is starting. So Okay, any day after 18th or on 18th you can start. all right. Thank Okay? you. Thank Yeah. you. Thank you. जी पेनी जी, good to see you. Please बताइए। Thank you, Any ma'am. question? Thank you. Yes, Thank you. yes. Please. Nandan, and good to see you too. Thank you. Thank you so much. Yes. I just wanted to ask, ma'am, ये जो आपने फर्स्ट रोड स्टार्ट या रोड ओपनर बता रहे हैं ना अभी, बिकॉज मेरा बीच में थोड़ा सा कनेक्शन चला गया था। हाँ, सो दिस इज फॉर रोड ओपनिंग ना? Yes, you can say that it is for abundance also. बरकत के लिए, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, मनी के लिए है, एंड लाइफ की ग्रोथ के लिए है। ये जो बार्ले वाला बताया वही ना मैम? नहीं, अभी जो बार्ले वाला, नहीं बार्ले वाला I'm नहीं है asking about ये। this बार्ले वन। अच्छा, तो बार्ले वाले बिजनेस आपका अचानक से अगर रुक गया है, देयर इज नो ग्रोथ स्पेसिफिकली फॉर बिजनेस। मतलब स्पेसिफिकली फॉर बिजनेस आपका, बिजनेस। हाँ, स्पेसिफिकली फॉर बिजनेस, दैट बिजनेस अच्छा चल रहा था एंड एकदम से स्टैग्नेंट हो गया, एवरीथिंग रुक सा गया है। अच्छा, और अगर किसी का स्टार्टिंग करना है बिजनेस तो उसके लिए नहीं है? उसके लिए ये रेमेडी नहीं है पेनी जी। ओके ओके, उसके लिए ये नहीं है। जी। एंड जो आपने रीजन बता दिया पर्पस मैम, अब उसके अकॉर्डिंग अगर हम कर रहे हैं तो वी कैन कीप इट इन अ दोना आल्सो द बार्ले, बिकॉज वो उसको वी हैव टू कीप इट अंडर द यस पीपल यस ट्री यस नेक्स्ट डे, सो वी यस कैन कीप यस द बार्ले इन अ दोना, यस यस, है ना? एब्सोल्युटली यस। हाँ, हाँ, सो बिल्कुल। विल कीप द बार्ले अलोंग विद द दोना ना, साथ में ही रख देंगे। यस यस यस। ओके, और इसमें कोई कृष्ण पक्ष या पक्ष वाली बात नहीं है, वी हैव टू बिगिन ऑन सैटरडे ओनली, एनी सैटरडे, ना? Yes, yes, any Saturday. But if you started, then continuously do it for 5 Saturdays. 5 Saturdays, right, right. जी मैम। यहाँ पर जाना है मीन्स बिफोर 9, बिफोर 10 जा सकते हैं ना? बिफोर 10 जा सकते हैं और रखने के लिए पीपल के नीचे। हाँ, आपने सैटरडे को इसको रात को रखा और आप सुबह नहा धोकर फ्रेश होकर जाकर रखाइए बस। ठीक। कोशिश करिए कि 10 बजे से पहले ही हो जाए। तो वहां पर भी हमें जैसे विष्णु जी का थोड़ा सा मंत्र चांटिंग करके आ जाए। हाँ, हाँ, आ जाए, ओम बट नमो आपको भगवते आपको वासुदेवाय। पानी वगैरह कुछ नहीं देना है, क्योंकि संडे को हम पीपल के पेड़ पे छूते भी नहीं है और पानी भी नहीं देते हैं। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। हमने सिर्फ जो काम किया है सैटरडे नाइट को, उसका सामान उठा के हमने सिर्फ वहां पे छोड़ कर रख के आना है और विष्णु जी को थैंक यू बोलना है, माफी मांगनी है और उनको अपना एक इंटेंशन सेट कर देना है बस। ओके, और मंत्र भी लक्ष्मी फिर जी को नहीं भी बोले, याद करोगे। फिर हाँ, बेटर नहीं नॉट भी, टू डिसाइड। हाँ, अगर नहीं भी करना है दैट इज ओके, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट कुछ लोग जो बहुत ज्यादा मानते हैं वो शायद संडे के दिन भी करते हैं। तो भगवान को तो हम कभी भी याद कर सकते हैं, वहां करो घर आकर हाँ, करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लक्ष्मी जी को भी हम ओके कभी भी याद कर सकते हैं, आप घर पे भी आकर कर सकते हो। प्लस हम जो ये संडे को कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली माना जाता है, माना क्या, दिस इज अ फैक्ट कि पीपल का पेड़ पे पितरों का भी वास होता है, हमारे एंसेस्टर्स का। तो हम ये ये तो जो माना ही काम कर जाता रहे है, हैं, राइट। हाँ, ये हम जो कर रहे हैं, ये हम उनसे भी ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। राइट राइट। What is the logic behind it, ma'am? कि we should not put a deepak or anything on Sundays beneath the people tree? एंशियंट स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि पीपल के पेड़ को हमें संडे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। Okay, it's like that. या इट्स लाइक दैट। यस। Okay, okay. Thank you, ma'am. थैंक यू, थैंक यू। अगर इतने सारे क्वेश्चंस होंगे तो हम रेमेडी कैसे कवर करेंगे? पहले रेमेडी कर लें एक और, उसके बाद मैं क्वेश्चंस लूंगी।
डोंट वरी, आई विल टेक एवरीबडीज क्वेश्चंस। ठीक है, एक आधी रेमेडी रह जाएगी तो क्या फायदा। आई वांट कि जितना मैंने कंटेंट बनाया है हम आज मैं वो डिलीवर कर दूं। ठीक है, अब कमिंग टू रिलेशनशिप इश्यूज, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, बहुत ज्यादा कलेश होता है घर में, एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखना पसंद करते हैं, उस केस में आपने क्या करना है। अब ये इशू किसी को भी हो सकता है, हस्बैंड को वाइफ से हो सकता है तो हस्बैंड कर ले, वाइफ को अगर हस्बैंड से हो रहा है तो वाइफ कर ले। ठीक है, आपने ना एक कांसे का बर्तन लेना है। कांसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनी आइडिया? ब्रॉन्ज, कॉपर, कॉपर, ब्रॉन्ज। मीनाक्षी जी सेइंग ब्रॉन्ज, एकता जी सेइंग नो। और मैं ना रेमेडी अपने क्लाइंट्स को जो देती हूँ ना तो मैं कांसा ही कहती हूँ और वो समझ जाते हैं। अब जब मैं इंग्लिश बोलती थी तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाती थी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, अब मुझे कांसा ही वर्ड याद हो गया, अब मैं इंग्लिश भूल गई हूँ उसकी। ब्रास, मेरे ख्याल से कांसा इज ब्रास। ठीक है, तो हमने एक कांसे का बर्तन लेना है। मिथिलेश जी सेइंग नो। तो फिर अब हम चैट जीपीटी खोलेंगे। मेरा फोन ऑलरेडी मैं कैमरे के सामने हूँ ऑन फोन, बिकॉज मेरे सिस्टम में आज वाईफाई का प्रॉब्लम है, तो मैं चैट में डाल दूंगी। ठीक है, तो अभी के लिए आप कासा समझिए, क्योंकि हमें यहाँ पे कासा ही यूज करना है। कंफ्यूजन कासे में नहीं है, कंफ्यूजन इसके इंग्लिश वर्जन में है। ठीक है, तो कासा ही यूज करेंगे यहाँ पर। आपने कासा लेना है, कटोरी ले लो और उसमें आपको शुद्ध देसी घी भरना है। ठीक है, आपने क्या करना है, अगर हस्बैंड को वाइफ से इशू हो रही है तो ये हस्बैंड करेंगे, और अगर वाइफ को इशू हो रहा है हस्बैंड से तो वाइफ करेंगी। इंटेंशन अच्छा सेट करोगे, और जहां पे भी अखंड ज्योत जलती है ना मंदिर में, अखंड ज्योत, आप सिद्धिपीठ वाले मंदिर में देखोगे वहां पे बहुत होते हैं आसपास, वहां पे जहां पे भी अखंड ज्योत चलती है, आपने इस कांसे के बर्तन में जो घी डाला है वो वहां लेकर जाओगे, इंटेंशन के साथ उसी अखंड ज्योत में ये घी डाल दोगे, और कांसे का बर्तन भी वहां छोड़कर आओगे विद इंटेंशन। अब किसी ने लिखा इट्स ब्रॉन्ज, मुझे भी पता है कि इट्स ब्रॉन्ज, बट नाउ इट्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी, कॉपर, ब्रॉन्ज। ठीक है, थैंक यू एकता जी। ठीक है, प्लीज डोंट यूज सो प्योर हिंदी। व्हाट इज अखंड ज्योत? अखंड ज्योत को इंग्लिश में वी विल से, हाउ डू आई से दिस नाउ, a diya which is lit in any temple for 24 hours, that is known as akhand jyot. ओके, इसके साथ अगर आप ये रेमेडी तो कर रहे हो अच्छी चीज है, इसके साथ अगर आप किसी इस्कॉन के मंदिर में जाकर या कृष्ण जी के मंदिर में जाकर पंडित जी को एक मोर पंख दे दो ना, और उनको बोलो कि आप कृष्ण जी के सर पे चढ़ा दीजिए, लगा दीजिए उनकी टोपी पे, बहुत अच्छा काम करता है ये। आपको खुद नहीं दिया जाए, आपको खुद नहीं लगाना होगा, बिकॉज पंडित विल रिफ्यूज। यू कैन हैंड ओवर दैट मोर पंख, अ पीकॉक फेदर, टू द प्रीस्ट एंड टेल हिम कि आप इसको प्लीज कृष्ण जी के मुकुट पे लगा दो, एंड वहां पे यू प्लीज सेट योर इंटेंशंस। अब ये हम दो रेमेडीज किस लिए कर रहे हैं? एनी पर्सन हु इज फेसिंग रिलेशनशिप इश्यूज। ठीक है, अब I will tell you, Shruti ji, I'll come to you. I'll come to you. Let me just complete 2 more remedies, then I'll answer everybody's questions. Okay? अब किसी का पैसा अगर स्टक है, आपने किसी को दिया, वहां से वापस नहीं आ रहा है, आपने
अपने ऑर्डर्स की डिलीवरी की एंड द वेंडर इज नॉट पेइंग यू, इट कुड बी एनी सिचुएशन। वहां पर आपने क्या करना है, एक काला कपड़ा लेना है कॉटन का, स्क्वायर शेप में, स्क्वायर शेप में। और जो हमारे घर में सिंदूर होता है ना, यूज सिंदूर पाउडर वाला, आपने सिंदूर से उस आदमी का नाम लिखना है उस काले कपड़े पे। या पहले सुन लो, पहले सुन लो, अभी मत लिखो, पहले सुनो। ये जो रेमेडी है ना, ये दो तरीके से हो सकती है। इधर आपने जो स्क्वायर काला कपड़ा लिया, उस पे आपने किसी भी तरीके से उसका नाम लिख दिया। अब काले कपड़े पे कोई इंक चढ़ती नहीं है जल्दी, राइट? तो यू कैन इवन यूज सिंदूर आफ्टर यूजिंग गंगा जल इन इट और सम वाटर इन इट। ठीक है? अगर आपके पास कोई और आइडिया है तो आप मुझे बताओ कि आप काले कपड़े पे कैसे लिखोगे। सिंदूर से ही लिखेंगे हम, ठीक है? सिंदूर से आप लिखोगे, और आपने जिस सिंदूर से लिखा है उसके ऊपर सिंदूर स्प्रिंकल भी करोगे इंटेंशन के साथ। महेश जी, इफ मार्कर ब्लैक कपड़े के ऊपर यूज हो रहा है तो प्लीज गो अहेड विद इट, प्लीज गो अहेड विद इट। इफ यू कैन यूज वाइट ग्लिटर पेन, प्लीज गो विद इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें बेसिकली नाम लिखना है उस काले कपड़े के ऊपर उस आदमी का जिससे हमारा पैसा अटका हुआ है या फंसा हुआ है। ठीक है? उसके ऊपर जब आप स्प्रिंकल करोगे ना सिंदूर, आपका इंटेंशन जरूरी है उस समय कि ये पैसा मेरा वापस आ गया है, इसने मेरा पैसा वापस दे दिया है। ठीक है? एंड फिर आपने कपड़े को क्या करना है, एक छोटी सी लोहे की डब्बी ले लेना। अब गाइस, दिस इज नॉट अ रेमेडी, इट इज अ टोटका, इट इज अ टोटका। ठीक है? आपने लोहे की डब्बी में बंद कर देना है और इसको छुपा देना है। बहुत छोटा सा कपड़ा लेना है, मतलब बहुत बड़ा कपड़ा हमें नहीं लेना है इसके लिए। बहुत छोटा कपड़ा, मतलब साइज जिसमें आपका एक नाम आ जाए, पेपर के साइज का एक छोटा कपड़ा लेना है। फिर आपने लोहे की डब्बी में जिस पे आपने नाम लिखा है, जिस कपड़े पे, उसको डाल के 43 डेज तक छुपा देना है। कहीं पे भी छुपा सकते हो अपने घर में, कहीं पर भी। मेरे एक क्लाइंट को 43 डेज के अंदर उसका पैसा वापस आ गया था, और सामने वाले ने खुद फोन किया था। सो इट डिपेंड्स कि कितना स्ट्रॉन्ग इंटेंशन आपने दिया है इस रेमेडी में। एंड उसके बाद उसको बार बार खोलना नहीं है, उसको उसकी जगह से हिलाना नहीं है। आप कोई भी जगह में छुपा के इसको रख सकते हो एक इंटेंशन डाल के। 43 डेज के अंदर माना जाता है कि ये चीज पूरी होती ही होती है। उसके बाद आपने क्या करना है, डब्बी के साथ आपने इसको पीपल के पेड़ पे छोड़कर आना है। सो 43 डेज तक यू विल वेट। Yes, yes. If it is an organization also, you can write organization name also. That's not a problem. आपने डब्बी के साथ 43 डेज के बाद इसको पीपल के पेड़ पे छोड़कर आ जाना है। इंटरेस्टिंग लग रहा है? इज इट इंटरेस्टिंग? अब जितने भी लोग यहाँ पे ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, उनको ना रेमेडीज कम पड़ जाती हैं, आई फील। रेमेडीज हम जितनी ले लें, हमें लगता है कि सही है, वी ऑल आर सॉर्टेड, लगता है। एक और रेमेडी दूं? एक और रेमेडी दूं? ठीक है, बहुत सारी रेमेडीज हैं। Let me just see what is the best remedy which I can help you with. Someone has typed for health remedy. Okay,
Okay. It's a request for marriage also, legal issue also. Then come and learn this course with me. It's gonna be a 3 to 4 day course. So let's ask how many people would want to learn this course. हाँ, प्लीज बताइए ना किन किन को सीखना है. हैंड रेज करिए. एकता जी इज देयर. देन मीनाक्षी जी saying me. नीता जी, I can just see a smile on your face. You're still thinking, it seems. Lakshmi ji, yes. Okay, nice. Acha, Madam Sindoor, I will ask everybody their questions. Don't worry. फॉरेन ट्रैवल की रेमेडी दूं या शादी की रेमेडी दूं? शादी की दूं? शादी की दूं? बहुत पावरफुल रेमेडी है. जिसकी शादी नहीं हो रही है ना, जिसकी शादी नहीं हो रही है, सबको फॉरेन की भी चाहिए और शादी की भी चाहिए. वाह. जिसकी शादी नहीं हो, ये पेरेंट्स भी कर सकते हैं अपने बच्चे के नाम पर जिसकी शादी नहीं हो रही है. ठीक है, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी कर सकता है. आपने 7 थर्सडेज कड़ी चावल खिलाने हैं जरूरतमंद वालों को. क्या करना है? सिर्फ कड़ी चावल खिलाने हैं 7 थर्सडेज. ठीक है. अब जो भी लोग यहाँ पे मुझसे हेल्थ की रेमेडी मांग रहे हैं ना, देखिए हेल्थ की रेमेडी में जेनेरिक रेमेडी ऐसी मेरे पास बहुत है. अब जेनेरिक रेमेडीज में आईज की प्रॉब्लम भी हो सकती है, मतलब एज इन आई हैव लॉट मेनी रेमेडीज बट आई कैन नॉट गिव लाइक दैट. आई विल हैव टू चेक दी चार्ट. कड़ी इज मेड फ्रॉम कर्ड. यस. किसी ने पूछा है क्या कि कड़ी किससे बनती है? नहीं, कड़ी पूछा कि क्या है. सो whoever wants health remedy, there is a surprise. जो भी आज आए हैं ना कॉल पर, we are going to give them 15 plus rosemary spice के remedies, और उसमें हेल्थ की remedies है. Everybody will be receiving this beautiful PDF on the email. जितने भी लोगों ने रजिस्टर किया है, आज वर्कशॉप में आए हैं, you've given your time, so it's a bonus from us. आपको ये 15 रोजमेरी की रेमेडीज का पूरा PDF आपके मेल पर 2-3 दिन में सेंड किया जाएगा. एक रेमेडी में सी दैट इज वेरी without seeing, without consulting, I really cannot give any, but one generic remedy which I can say, because हर चीज की अलग है. जैसा mood swings is also a health issue. Mood swings is also a health issues. Specifically if I talk about all planets, जो हम कोर्स में सीखेंगे, हर planet की क्या क्या problems हैं, उससे क्या क्या problems आ सकती हैं, and planet associated क्या remedy दी जा सकती है, वो हम सीखेंगे. अब for example मैं देती हूँ sun. कोई किसी का भी जन्म अगर 1-10 तारीख को हुआ है, ठीक है, 19th को हुआ है, 28th को हुआ है, अगर उनका सन बिगड़ा हुआ है तो उनकी आईज में प्रॉब्लम आ सकती है, उनके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है. अभी तो सिर्फ 2 बता रही हूँ, वैसे बहुत होती हैं, बट आई स्पेसिफिकली बहुत बड़ा कंसर्न माना जाता है. तो फिर हम सन से रिलेटेड रेमेडीज देना चाहेंगे. ठीक है. बट हाँ, अगर हेल्थ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है तो फिर कहीं ना कहीं वी नो कि राहु एंड शनि कुड बी वन रीजन. अब जैसा बोन्स में दर्द होता है, जॉइंट्स में दर्द होता है, तो एकदम से क्लिक करता है भाई शनि शनि परेशान कर रहे होंगे. सो ये हेल्थ की रेमेडीज जेनेरिक में अभी एक दे सकती हूँ, बट इट इज स्पेसिफिक रिलेटेड टू प्लैनेट्स ऑल्सो. ठीक है. तो अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और बहुत स्ट्रगल्स हैं तो आप सैटरडे के सैटरडे चाय पत्ती डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो टू स्वीपर्स जो आपकी लोकेलिटी के आते हैं ना, लोकेलिटी में जो आते हैं उनको. अब इसी तरीके से स्किन की रिलेटेड इश्यूज अगर किसी को आ रहे हैं तो उसकी अलग रेमेडी होगी. अब लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसकी एक अलग रेमेडी होगी, विच वी विल डेफिनेटली बी कवरिंग इन द कोर्स.
और मूड स्विंग्स वाला मैंने आपको बता ही दिया है। Neha, you will let me know whenever you want me to share the screen. हाँ, बस now ma'am we are coming on the course content also. So anybody who wants to see the course content, anybody who's interested, ठीक है मैम, आप प्लीज स्क्रीन शेयर कर दो। एंड आई रियली वांट टू अपोलोजाइज, क्योंकि आज राहु देवता बड़े मुझसे नाराज हैं। तो शाम से ही मेरे चाहे हाउ मेनी डेज, जब तक आपको वहां पे डिफरेंस नहीं दिखता है, हेल्थ इंप्रूवमेंट में डिफरेंस नहीं आता है, तब तक दो। और इसको एटलीस्ट 4 सैटरडेज तो करो। Yes, Neha. सो हु दिस इज फॉर? ब्रह्मास्त्र रेमेडीज कोर्स किसके लिए है? जिन लोगों को लाइफ में जिनका पैटर्न ऐसा बंधा हुआ है कि ब्लॉकेजेस आते ही आते हैं। इट कुड ईदर बी करियर, मनी और रिलेशनशिप्स। हीलर्स के लिए बहुत अच्छा है, टैरो रीडर्स के लिए बहुत अच्छा है, न्यूमरोलॉजिस्ट, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स। मैम चावल मीन्स सिंपल या खिचड़ी बनाएंगे? मैम आप कढ़ी अलग बनाओगे और चावल अलग बनाओगे, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नीडी को। ठीक है, थर्सडेज को भी कर सकते हो इसे। अदरवाइज इसको आप मतलब इंटेंसिटी क्या है शादी ना होने की, बहुत ही ज्यादा डेस्परेशन है तो मैं कहूंगी कि मत करो, बिकॉज हमें हर रेमेडी करके सरेंडर करना होता है। अदरवाइज इसको हम थर्सडे को भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम नीता जी। ठीक है, अब किसी को नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, नजर बहुत ज्यादा लगती है, तो ये कोर्स उनके लिए भी है। Because we will be covering everything you name about a problem and we will have the remedy for it. Okay? मैम आप स्क्रीन से स्लाइड चेंज कर दीजिए प्लीज। अब who is this not for? हम सबको पता है, since we all are into spiritual practices, रेमेडीज हमारी जिंदगी में आने वाली और प्रॉब्लम से हमें बचाता है। ये कोई मैजिक नहीं है कि हमने आज किया और हमें कल रिजल्ट मिल गया। हमें यहाँ पे पेशेंस रखने की जरूरत होती है एंड सरेंडर करने की जरूरत होती है, क्योंकि रेमेडी, प्लीज समझिए, रेमेडी एक टूल है, हमारे हाथ में हथियार है। बट सबसे पावरफुल चीज क्या है? आपका इंटेंशन और आपका भरोसा। आपने रेमेडी तो कर दी और उसके बाद आप गिन गिन रहे हो, आज तो 41 डे हो गया, आज तो 42 डे हो गया और ये काम नहीं किया, ये नहीं किया। ये नहीं करना है। और इनफैक्ट अगर आपने जो आज 5 6 7 रेमेडीज मुझसे सीखी हुई हैं, आप उसको अपने क्लाइंट हो ना, तो सबसे ज्यादा फोकस आप इंटेंशन पे देना और फेथ पे देना। हमें कमिटमेंट नहीं देना है, क्योंकि जहां फेथ होगा, जहां इंटेंशन बहुत स्ट्रांग होगा, वहां पे ये 43 डेज के अंदर जहां जहां मैंने टाइम लिमिट दिया है, वो होता ही होता है, रिजल्ट आता है। क्योंकि ये जो भी रेमेडीज मैं दे रही हूँ, ये ब्रह्मा जी की ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज हैं, इसीलिए नाम इनका ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, एंड जो जो टाइम लिमिट इसमें दिया हुआ है, जितना ड्यूरेशन दिया हुआ है, इसको हमें फॉलो करना जरूरी है। ठीक है मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस कोर्स में ये 3 to 4 डेज का कोर्स होगा। इसमें हम 60+ रेमेडी सिखाएंगे। 60+, ज्यादा ही होंगी। और क्या होंगी? मनी से रिलेटेड, प्रोटेक्शन से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, सक्सेस से रिलेटेड। एंड ऐसा नहीं होगा कि एक एक रेमेडी होगी। जिन्होंने मुझसे पहले कोर्सेज किए हुए हैं वो जानते हैं कि अच्छी एक एक प्रॉब्लम की 2 2 3 3 रेमेडीज मैं देती हूँ। ठीक है, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेगी। ऑरा क्लेंजिंग भी हम इसमें सीखेंगे, प्रोटेक्शन भी हम इसमें सीखेंगे। हम अपनी एनर्जी को कैसे बूस्ट करके रखें, मनी को कैसे अट्रैक्ट करके रखें, बिजनेस ग्रोथ की रेमेडीज होंगी, रिलेशनशिप से रिलेटेड होंगी।
किसी को जिसको डर बहुत ज्यादा लगता है, जिसको हमेशा फील होता है कि भाई मैं किसी काम का नहीं हूँ, जिनका इमोशनल साइड बहुत वीक है, दिमाग में शांति नहीं है, नॉन स्टॉप चलता रहता है, वो रेमेडीज भी हम कवर करेंगे अलॉन्ग विद दैट प्रॉपर्टी, करियर, स्टेबिलिटी, और जो मैंने आपको अभी प्लैनेट्स बताए हैं उनको भी हम कवर करेंगे। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर्टिफिकेट भी मिलेगा, पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, रिकॉर्डिंग एक्सेस भी होगा फॉर 1 ईयर। ठीक है, 13th से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। सो 13th, 14th, 15th एंड 16th आई ट्राई टू कवर इट अप 15th तक, बट एक दिन का मैं एक्स्ट्रा लेकर चल रही हूँ कि इनकेस अगर बहुत क्वेरीज हैं या कुछ है या कंटेंट हमारा कवर नहीं होता है तो एक दिन मैंने एक्सटेंड रिक्वेस्ट किया था कि कर दीजिए। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज इसका इज 1110। So the course starts from 13th 6 p.m. we start, we meet, and we'll be there together till 16th. I cannot promise, but yes, I will try my best to complete this by 15th. And 60 plus remedies we will be learning, in which we will be covering all the aspects, in fact more than that. इसमें planets नहीं लिखा था तो हम planets से related भी सीखेंगे। ठीक है, आप किसी के जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग प्लीज मुझसे बताइए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। रति जी प्लीज बताइए। रति जी यू हैव अ क्वेश्चन? कितने लोग जुड़ेंगे 13th को? Ratnesh ji is asking what is the difference between Lal Kitab remedies and Brahmastra remedies. It's a very good question. Lal Kitab is also generic remedies. They are also very powerful. The only difference is कि Lal Kitab की remedies restricted to days होती है. If you miss any day, you will have to start the remedy again. This is the biggest I would say, जो ये टाइमलाइन का है इनका, यही सबसे बड़ी पावर है टू सी द रिजल्ट्स। एंड रेमेडी आप कहीं से भी उठाओ, कोई भी उठाओ, सब पावरफुल होती हैं, डिपेंड करता है आपके फेथ के ऊपर और आपके इंटेंशन के ऊपर। जी एकता जी प्लीज बताइए। वसुधा मैम। हाँ बोलो। एकता जी को अनम्यूट करो प्लीज। She has not raised her hand. एक minute. Yes, Ekta ji. Hi, ma'am. Ma'am, I am interested in this course. The only problem is that I have some other commitments also, and it might be a possibility that I won't be able to attend all the sessions. I mean, for all 4 days, because what are the timings and everything? I usually have classes in the evening, other classes. So in that case, little bit dicey. But yes, I want to do this course. You'll be getting the recording, Ekta ji. So Vasudha ma'am, is it like if I don't, and like the previous class also I was not able to attend that ginger one. So is it like something which I'll be missing if I'm not live? Is it like that? No, आप नो नो recording से नो नो आराम एकता जी, से सकते हो। नेहा जी will be better person to tell. no एकता जी, नथिंग, इट्स जस्ट दैट you will be getting the PDF. लाइव का एक्सपीरियंस अलग होता है, that's the only thing which you will That's what miss. I feel, yeah. Otherwise everything whatever will be taught will be, the recordings would be given, and जो PDF मैं पढ़ाऊंगी वही PDF आपको मिलेगी। And what will be the timings if I may know? 6 p.m. to 8 p.m. Okay. Okay, thank you. 6 p.m. to 8 p.m. का है, मतलब जैसा जरूरी नहीं है कि 8 p.m. तक ही खींचे।
Mhm. Okay, it can be 6 to 7:30, 7:45, 8 Okay. o'clock, ऐसे, depending Because on the queries also. because I have some other classes which starts from 7 till 9:30. So हाँ, तो that's why I'm asking. आप 1 घंटे का कर सकते हो, Hmm. फिर you can leave and That then will see be the fine. recording. Yeah, Yeah, that will be yeah, fine. Yeah. yeah, yeah. जी रितु जी, thank you एकता जी. जी रितु जी, you have any question रितु जी? You have any question रितु जी? I've sent her the unmute request. Okay. रितु मेहता जी, आपका कोई question है? Let me allow everybody to unmute now. सब अपने आप अभी unmute कर सकते हैं. Yeah, Yes, Ritu. now I'm able to unmute. Actually, I was not able to unmute. Yeah, हाँ नेहा जी, एक्चुअली ये जो आपने रिलेशनशिप रेमेडी दी है, इसको करने का कोई स्पेसिफिक डे है? No, जैसे no, बाकी no. रेमेडीज आपने बताया ना, डेज हैं. नहीं, नहीं. एनी डे वी कैन डू दैट. Any day, any day. राइट, दोनों वाली रेमेडीज ना, एक आपने 2 रेमेडीज बताई हैं इसमें. आपने एक वो घी वाली रेमेडी है और एक मोर पंख वाली रेमेडी. अखंड दिए वाली और मोर पंख वाली, अगर आप दोनों इकट्ठे करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा. और आप दोनों को किसी भी दिन कर सकते हो. दोनों में से अगर एक भी करनी है, वो भी आप किसी भी दिन कर सकते हो. ओके ओके फाइन, थैंक यू. मैम थैंक यू जी. जी मैम. मैम राधे राधे. राधे राधे. मैम बहुत अच्छा सेशन था. थैंक यू सो बहुत मच. आपने थैंक यू. अच्छा नॉलेज दिया. मैम वो जो थैंक आपने यू. काले कपड़े में सिंदूर बोला है, वो रेड वाला है कि ऑरेंज वाला? रेड नाम रेड लिखना है. रेड रेड काम्या सिंदूर. ओके. रेड यूज करोगे, और जब नाम लिख लोगे तो आप स्प्रिंकल भी करोगे उसके ऊपर, इंटेंशन सेट करते हुए. चुटकी चुटकी भर, चुटकी हाँ भर. हाँ हाँ, चुटकी सी. इतना सा तो और कपड़ा मैम होगा एक, मैम. हाँ जी, और मैम एक और क्वेश्चन था कि वो जो आप बता रहे हो लोहे का होना चाहिए बर्तन, तो मैम वो यूज किया भी ले सकते हैं? लोहे का बर्तन मैंने कांस बोला था ना, लोहा कहाँ बोला था? लोहे का, वो जिसमें काला हमने ये कपड़ा डालना है. जी जी जी. हाँ हाँ हाँ, यस 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 यस. पर मैम उसकी लिड तो प्लास्टिक की होती है कई बार. क्या होती है मैम? लिड उसका, उस पर ढक्कन प्लास्टिक का होता है, तो चलेगा? तो वो लोहे, मतलब आप कह रहे हो कि उसका बेस लोहे का होगा? नहीं, हमें पूरा लोहा ही चाहिए. नहीं नहीं, जो उसका ढक्कन होता है, जैसे ऊपर कई बार हम लाते हैं ना, जैसे स्वीट वगैरह लाते हैं, उसके ऊपर का जो लिड होता है वो प्लास्टिक का होता है. तो यू ऑल कांट ओवर यूज हमें दैट. वो चाहिए आयरन का. यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये टोटका है ना मैम. ओके टोटका जिस तरीके से स्पेसिफिकली बोला गया है ना, उसको हमें वैसे ही करना है. ओके. एंड आई एम अगेन गेटिंग कंफ्यूज स्टील और लोहे में. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैम स्टील हमने एंड लोहा? लोहे स्टील, का लिखवाया है, मैंने नोट डाउन किया है लोहा. हाँ, मतलब स्टील तो हम अपने घर में बर्तन, स्टील का ग्लास वो वगैरह, वो नहीं यूज करना है, लोहा ही यूज नो करना मैम, है. लोहा लोहा. आपने लोहा बोला. नहीं हाँ, नहीं रितु जी, लोहा आपने तो कंटेनर. बोला. चैट आई है मेरे पास, चैट. आपने ओके तो लोहा ओके. ही बोला है, और मैंने भी लोहा ही बोला है, तो वो मुझे हाँ जी हाँ जी. वी हम हैव भी टू कंफ्यूज यूज है. लोहा ओनली. हाँ जी. ठीक है ठीक है जी. मैम, एक वो मेरे को बस लिट का थोड़ा था कंफ्यूजन, क्लियर है. Ma'am, I was just लिड भी. clearing her doubt only क्या? that sweets are never kept in steel, never kept in iron. Usually जो आयरन. sweets वगैरह रखते हैं वो या तो स्टील होता है या एल्यूमिनियम होता है. तो iron is never used for sweets. तो वो something steel ही होगा जो वो पूछ रही है. हाँ, तो हम देखिए, लोहा इज लोहा, लोहे में जंग लगता है, स्टील में जंग नहीं लगेगा. स्टील के तो ग्लास में हम पानी भी पीते हैं, हम लोहे के ग्लास में कभी पानी नहीं पीते हैं. तो जिनको भी कंफ्यूजन्स हैं, प्लीज इस पे थोड़ा सा आप अपनी तरफ से स्टडी करिएगा कि ब्रॉन्ज क्या होता है, स्टील क्या होता है, लोहा क्या होता है. लोहा पानी के साथ जब टकराता है तो इट क्रिएट्स रस्ट. ठीक है जी. पेनी जी, मैम कौन सा दिन? ये आप कभी भी कर सकते हो मैम. जिस पे यस मैंने मैम. डेज जिस पे मैंने डेज मेंशन किए हैं ना, वो रेमेडीज ही सिर्फ डेज के साथ है. जहां पे मैंने बोला आप इसको 43 डेज करके देखो,
तो वो स्पेसिफिक है। बाकी जो रेमेडीज मैंने बताई हैं उस पे मैंने लिबर्टी छोड़ी हुई है, क्यों आप उसको कभी भी कर सकते हो। अब रिलेशनशिप इशू है, आप वेट नहीं करोगे ना। अगर घर में डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है या कुछ बहुत ज्यादा मेजर इशू है, आप चाहोगे कि इससे जल्दी से जल्दी मुझे मुक्ति मिले, राइट। अबंडेंस वाली जो मैंने रेमेडी दी है कि आप उसको शुक्ल पक्ष में करो, बिकॉज वो ग्रोथ के लिए है, वो अबंडेंस के लिए है। और हम कृष्ण पक्ष में भी कोई भी ऐसी बढ़ोतरी वाली चीज, अबंडेंस वाली चीजें वेनिंग फेजेस में नहीं करते हैं। इसीलिए स्पेसिफिकली मैंने बोला है कि उसको शुक्ल पक्ष 18 अप्रैल से स्टार्ट करिएगा, क्योंकि हम अट्रैक्ट करने के लिए चाह रहे हैं वो रेमेडी, कुछ अट्रैक्ट करना है अपने अपनी लाइफ में। और उसका रिजल्ट 43 डेज जब आप कंटिन्यूसली करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली उसके रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे, इसीलिए स्पेसिफिकली लिखा है 43 डेज। और कहीं पे मैंने 5 सैटरडेज लिखा है, तो वो 5 सैटरडेज ही करना है। इफ यू मिस इट यू विल हैव टू रीस्टार्ट इट, and the day you start it will be day 1 for you. Okay जी एकता जी। मैम जो रिलेशनशिप वाली रेमेडी है उसमें आई थिंक कोई डे मेंशन नहीं है। नहीं है, ओके तो आप वो कभी फाइन भी कर सकते हो। श्योर। अब वैसे अगर आप मुझसे पूछो तो मैं, अगर मेरा कोई क्लाइंट फंसा हुआ है, आई विल नॉट गिव एनी डे, आई विल से प्लीज डू इट, ठीक है। और अगर स्पेसिफिकली मतलब टॉलरेट हो रहा है और काम चल रहा है तो मैं कहूंगी फ्राइडे को करो भाई। बट जब सिचुएशन होती है और जो बिल्कुल अनबेरेबल है, आप उसमें नहीं देखोगे कुछ भी, आप कर लोगे, ताकि आपको रिलीफ मिलना शुरू हो थोड़ा थोड़ा, ठीक है जी। पेनी जी प्लीज बताइए। जी मैम, it was a wonderful class as all your classes are. So thank you so much. थैंक यू सो Lots of मच, gratitude. थैंक यू Lots of मैम, gratitude from my side. Always welcome, ma'am. Yes. थैंक यू सो मच पेनी जी, थैंक यू। Thanks to you actually. And मेरा वही छोटा ही एक दो क्वेश्चन था, that is almost partially answered by you. आपने स्टक मनी में भी डे नहीं बोला, that means कि हम किसी भी डे उसको कर सकते हैं, and then it is to be kept for 43 days. है ना? Yeah. It can be started on any day. राइट। Yes. और इसी तरह से मैम वो था जो अभी लास्ट जो आपने बताया था, टी लीव्स डिस्ट्रीब्यूशन टू द स्वीपर, उसमें आपने थोड़ा बोला था कि एटलीस्ट 4 सैटरडेज करिए, तो वी शुड डू इट ऑन सैटरडेज ओनली और एवरी डे वी कैन डू? नो 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 नो, ओनली सैटरडेज। ओनली सैटरडेज, दैट और इज टू बी इसके डन पीछे ओनली। भी, हाँ देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि हेल्थ की जेनेरिक रेमेडी आई रियली ऐसे नहीं दी जाती हैं, बट हेल्थ के इश्यूज, अब अगर मैं प्लानिटरी चीजों से देखूं तो वो प्लैनेट के हिसाब से आएगा, बट मोस्टली राहु एंड सैटर्न हैं ऐसे प्लैनेट्स जो हमें अनडायग्नोज्ड डिजीजेस, राहु स्पेसिफिकली दे देते हैं। शनि को देखो तो वो भी अनडायग्नोज्ड डिजीजेस देते हैं, बट वो ज्यादातर पैरों से रिलेटेड दिक्कतें देते हैं। तो ये मैंने ओवरऑल जेनेरिक रेमेडी दी है कि अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको महसूस हो रही है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है, बट तबीयत खराब है, तो आप 4 सैटरडेज दे कर देखो। सिर्फ चाय पत्ती लेनी है, किसी भी क्वांटिटी में ले सकते हो, 250 ग्राम्स का पैकेट ले सकते हो, बट वो देना स्वीपर को ही है। आपके घर में जो राइट झाड़ू राइट, पोछा वाली आती है उसको नहीं देना है, उसको नहीं देना, हाँ लोकेलिटी का बिल्कुल नहीं। स्वीपर को देना, या यस, म्यूनिसिपैलिटी वाले, घर में यस। आने वाले नहीं, या बाहर वाले स्वीपर को देना है। और राइट, फॉर तो जैसे एग्जाम्पल, मैम, जी जी, बोलिए बोलिए नो नो, पेनी यू जी। फर्स्ट कंप्लीट योर सेंटेंस देन। आई वाज सेइंग कि यूजुअली जहाँ पे भी हम ये वाली रेमेडीज देते हैं ना, बहुत लोग गलती करते हैं, अपनी मेड्स को ही पकड़ा देते हैं जो हमारे घर में हम्म। आती है। वी शुड नेवर डू दैट। प्लीज रिमेम्बर दैट शी इज कमिंग टू योर हाउस, शी इज इन योर एनर्जी। और हमें हमें जो स्ट्रगल्स हैं वो तो हमें बाहर निकालनी है ना, तो हम अपने राइट। घर की मेड को क्यों दे रहे हैं? राइट राइट, वेरी राइट, वेरी ठीक करेक्ट है, मैम। या आई वाज तो जस्ट या please carry you on, you please can be carry on, Penny. I was just complete, the statement was already completed कि ये गलती बहुत लोग करते हैं, करते तो हैं, यहाँ पे हाँ, प्लीज थोड़ा सा इसको रिफ्रेन ध्यान किया रखेंगे। करिए, या राइट राइट,
हाँ, आई वॉज जस्ट सेइंग कि आपने शनि देव से रिलेटेड बोला ना इसको पर्टिकुलरली कि ऑन इट इज टू बी डन ऑन सैटरडेज, जेनेरिक रेमेडी फॉर हेल्थ। तो जैसे माय डॉटर यूजुअली हैज पेन इन हर लेग्स एंड आई हैव सम नी प्रॉब्लम आल्सो, तो वी कैन डू इट ना? Absolutely yes, absolutely yes, Absolutely, बिल्कुल absolutely yes, yes. जी Because जी legs problem, I think Shani Dev's जो anger है that is connected to giving problem to legs ना? It is one of नहीं the नहीं parts. नहीं अच्छा नहीं, नहीं है आई ऐसा? विल नहीं, आई विल नेवर से दिस कि शनि जी को गुस्सा चढ़ा हुआ है और उन्होंने आपको ऐसा दिया है। आपके ग्रिड के हिसाब से शनि में बी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग होगा या थोड़ा मेलिफिक होगा, तब आपको ये प्रॉब्लम, वो आपसे नाराज नहीं है। इनफैक्ट आई विल से दैट आई फील एंड इट इज माई पर्सनल फीलिंग दैट आई लव शनि planet the most because he is one planet who teaches us patience, and he Patience, teaches justice. us, yes, and he teaches us that you should be very very loyal to your work, no cheating, And and respect work also. Those who are yes, working hard, you must give yes, respect to them. yes, Yeah. and people who are working actually hard and following his principles, I have seen him giving people, his followers, loads and loads of wealth and stability as well. Right. So, if you ask me, my personal opinion, all the planets are very, very beautiful. It's just that how we take that specific planet's blessings. Every planet is very beautiful in its own way, and every planet teaches us something or the other. Right. ठीक है बेनी जी? That is correct. Yeah. एंड बस लास्ट छोटा सा क्वेश्चन है मैम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम जो आपने बताया था वो दैट इज जस्ट नॉट ओनली फॉर हस्बैंड एंड वाइफ ना, एनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम इट कैन वर्क ऑन ओनली फॉर हस्बैंड एंड वाइफ? If you can give me an example, I'll be लाइक मदर more एंड specific. डॉटर, कभी कभी फैमिली में बहुत प्यार होता है जहाँ वहां भी बहुत ज्यादा तकरार भी हो जाता है, लाइक दैट? No, this remedy is specifically for relationship of husband and wife only, ma'am. ओके, दैट आई वांटेड टू कंफर्म. Yeah, या yeah. ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो Thank you, मच. thank you, thank you so much. Thank you for your patience, Sridevi ji. Please बताइए. Thank you so much. My question was, we don't get sweepers here now. So we only get the people who they take the dustbins. हाँ, you can give them, you can give them. Can be given to them, right? Yes, absolutely, Yeah. yes, yes. Because sweepers, then I only see them near the place of work. They collect there for meetings or something. You can Around give my it to house, them. I don't get to see them. You can give it to them as Okay. well. Yeah, Yeah. thank you. Thank This is you. the first time I've attended your knowledge call. I've done classes only with Vasudha ji and Siddhi, but I appreciate the way you are explaining. Yeah, it's Thank true you so that for much. people who may not be familiar with Hindi, some of the words you're saying might be a little difficult. If at least in the notes there is an English equivalent, probably it will be easier. The PDF will definitely be in English only, ma'am. Okay, because when it comes to remedies, you can't be doing wrong. Yes, Yeah, absolutely. even though the No intention is compromises. very much set, the possibility of something else. That's the reason I was checking. So the Yeah. PDF will have the PDF notes will be provided in English only. Okay. Okay, sure. Okay. I'll see you in the So sessions. don't worry on Thank that. you. Thank you. Thank you so Thank much, you. ma'am. Thank you. Penny ji, Vandana ji, please बताइए. Can you unmute yourself, Vandana ji? हाँ जी, please बताइए. Yeah, I have unmuted myself. Can you hear me? Hello? Yes, yes, yes. Yeah. Yes, I can hear you. Hello, madam. This is the first time I'm attending your this course, and I had doubt for that Sindoor thing, which has already been answered. So Okay. I just wanted to know कि ये जो आप अभी कोर्स कराने वाले 13 से 16 तक, तो मेरे फैमिली में ना बैक टू बैक एवरीवन इज फॉलिंग सिक, तो उसमें ये सब रेमेडीज में आ जाएगा या हाउ इट इज, मतलब? एंड मैंने ये लेक्चर भी थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो मुझे जो मैंने मिस आउट किया वो आज का मुझे आपको मिलेगा? रिकॉर्डिंग, वंदना जी, आपको उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा. डोंट वरी ऑन दैट. Okay. And
जब कोर्स में आप आओगे आपको हर तरीके की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एज अ रेमेडी इसमें सिखाया जाएगा. I will be And sharing everything. okay, and can I speak to you like personally? अगर मेरा कुछ इश्यूज है तो उस हिसाब से आप रेमेडी कुछ दे पाएंगे? आप प्लीज ग्रुप में डालिए, द टीम विल बी एबल टू हेल्प यू इन दैट. बिल्कुल ओके हेल्प ओके, करेंगे. आप प्लीज ग्रुप में डालिएगा. ठीक है, ठीक थैंक है. यू. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. एनी अदर क्वेश्चन गाइस? I have Neha ji, I'm not able to raise hand. It's नो Payal. प्रॉब्लम जी, प्लीज बताइए, प्लीज बताइए. जहाँ मैं कनाडा में रहती हूँ तो यहाँ पे पीपल का पेड़ नहीं है. So what can I do for that? फिर किसी भी ट्री के नीचे रख दीजिए इफ देयर इज अ परमिशन देयर. परमिशन तो नहीं होती है यहाँ. तो फिर मैं सजेस्ट करूंगी कि जो भी पीपल के पेड़ वाली रेमेडी है उसको मत करो. Okay. And since if you are coming in the course, then obviously हर एक aspect की there are many remedies. तो फिर आप वहां पे देख सकते हो कि जो आपके लिए easily हो, easy आप कर सको. Okay. ठीक है. ठीक है पायल जी. Okay, thank you. Thank you so much. I would like to thank everybody once again. Thank you for giving me this opportunity today. I saw many new faces, I saw many old faces, and thank you for sparing your time. And I really wish कि हम सब दोबारा मिलें और मिलते रहें. So the course starts on 13th. So whosoever have enrolled, I would again say thank you so much, and I'll see you very very soon. 6 p.m. 13th we are meeting. जिन्होंने भी कोर्स में एनरोल किया है, PDFs मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, एंड आज की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी. ठीक है. Thank you so much. You have a Thank lovely you so much. smile. Thank you. God Thank bless you. you. Thank you so Yeah. much, and God bless you Thank you. all. Have a good night's sleep. Thank you. Bye bye. Thank you so much, Bye bye. Ji, on Bye. behalf of the entire team. Thank you so much. Thank you, Vasudha ma'am. Thank you. Bye bye. Good night. Good Good night. night. Deji, Good I'll send night. you the link on your personal WhatsApp number. मम्मा नारली नमका पेड़ली के पढ़ती